Hello students, hope you are well. So let's start our today's lesson. Today we are starting block 6, that is understanding a biography. Biography means someone's life story, real story. So lesson plan 1 is here, text features of a biography. And you will be able to make logical predictions about biography using text features. Making predictions means making judgments, thinking something before something happening. So, who do you look up into your real life and what inspires you about him, her? How can you know about the lives of others? So, आप अपनी रियल लाइफ में किसको देखते हैं, मीन्स कौन आपको इंस्पायर करता है और आप कैसे दूसरे पर्सनस की लाइफ्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं. सो वी लुक अप टू अवर फैमिली मेम्बर्स, सेलिब्रिटीज़ एंड पीपल हु हैव डन ग्रेट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स. We get inspired by their work and achievements. One way to get to know about them is reading about their lives. So हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ग्रेट थिंग्स जिन लोगों ने किए, लाइक महात्मा गांधी, कल्पना चावला, भगत सिंह. देयर आर सो मैनी पीपल दैट लाइक दैम वी वांट टू बिकम. सो उनके बारे में जानने के लिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ एन इंस्पायरिंग पर्सन. So open your Exceed content book at page number 41, Anita the Beekeeper. And what you have to do, students, you have to look at the photographs and the description below them and the subheadings. Firstly, you will open the book at page number 41 and you will look at the photographs, and below photographs description is given. You will read them and you will read the subheadings, and then we will fill the table in question 1 of S1. Then we will read the story. So in first photograph, what did you see? Anita believes that dreams do come true. Anita believe करती है कि सपने सच होते हैं, and she is standing in the field, and subheading is Anita's dream. At page number 42, there is a photograph in which Anita is teaching the children, and Anita teaching younger children in her community. Now, third subheading, Anita becomes a beekeeper and she is riding cycle among the fields, and the description is Anita riding her bicycle through the fields. So at page number 44, Anita making honey, and you can see that she is making the honey. And the last description, Anita's life story. So now take out workbook at page number 29, text features of a biography, and question 1. Look at the title, photographs and their captions and subheadings of the story, Anita the Beekeeper, and answer the questions in the prediction chart below. So what is the question? Question is, who is the story about? So what can you predict? You have not read the story yet. आप लोगों ने story अभी पढ़ी नहीं है. You have just seen the captions, pictures, descriptions. So on the basis of these things, what can you predict? So who is the story about? So a girl named Anita. So second column it, what helped you to make your prediction? आपने predict किया है कि जो story है वो अनीता के बारे में है. आपको कैसे, कौन सी चीज़ से help हुई है? So the title of the story and cover photograph. Title of the story Anita the Beekeeper है और cover photograph पे लिखा हुआ है. So where does the story take place? A village. You can see the pictures of villages, fields. So we can predict that the story takes place in a village. So what helped you to make your prediction that the story is taking place in the village, field, picture? What will the story be about? The story will be about Anita and how she became a beekeeper. स्टोरी अनीता के बारे में होगी और वो कैसे बी कीपर बनी. ये कैसे पता चला हमें, किस चीज़ से हेल्प की? हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी. सो इज इट अ रियल और इमेजिनरी स्टोरी? इट्स अ रियल स्टोरी. How do you know? Real pictures of Anitas are given, and understanding a biography is the topic name, and photographs से हमें पता चला. Other prediction, she is teaching the street children, and what helped you to make your prediction? Because we saw this in the picture. And third column is right or wrong. We will be able to fill this column after reading the story because we have just made the predictions right now.
So as I told you earlier that this is very inspiring story, interesting story. So let's start reading the story at page number 41, Anita the Beekeeper, Anita's Dream. So let's start, students. Once upon a time there were two trees. They were Anita's trees. If you say this to Anita, she will tell you that nothing can ever really be owned except for your dream. She says you must begin to dream to be able to make your dreams come true. सो एक बार की बात है, वहाँ पे टू ट्रीज़ थे और वो अनीता के ट्री थे, लेकिन अगर हम अनीता से इस बारे में बात करेंगे तो वो कहेगी कुछ भी हमेशा तुम्हारा नहीं हो सकता, परमानेंट कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में सिवाय तुम्हारे सपनों को छोड़ के। और अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें सपने देखने होंगे। द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बोचा in Muzaffarpur district, Bihar, on the day Anita decided to go to school. सो ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है बुचाहा, मुजफ्फरपुर बिहार में। और जिस दिन अनीता ने स्कूल जाने का डिसाइड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा अनीता बिलीव्स दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। सो दैट डे लिटिल अनीता वॉक अप एट सनराइज जस्ट एज ऑलवेज शी डिड टू टेक हर ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड गॉड्स फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। उस दिन अनीता सनराइज से पहले उठी और जैसा वो हमेशा करती थी अपनी ब्लैक वाइट जो उसकी गोट्स थी, आपने देखा होगा ना गोट्स पे वो स्पॉट्स होते हैं ब्लैक वाइट कलर के, उनको लेके फॉरेस्ट में चली गई वॉक के लिए। एवरी डे अनीता पास टू अ स्कूल ऑन द वे टू द फॉरेस्ट ऑन दिस डे हाउएवर शी स्टूड ऑन द टिपटॉज एंड पीप्ड ओवर द स्कूल वॉल। शी सॉ चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अनइवन लाइन्स सिंगिंग एज लाउडली एज दे कुड एट देयर मॉर्निंग असेंबली इन द कट्री यार्ड। सो हर रोज़ की तरह वो वहाँ से फॉरेस्ट में जाती थी तो स्कूल के पास से गुजरती थी और वो खड़ी हो गई। टिपटोज मीन्स स्टैंडिंग ऑन योर फिंगर्स ऑफ योर लेग। सो और वो झांकने लगी, पीप्ड मीन्स झांकना, स्कूल की वॉल से कि क्या हो रहा है। उसने देखा बच्चे अनइवन लाइन्स में खड़े हुए हैं, अपनी प्रेयर्स तेज़ तेज़ गा रहे हैं, जिसे आप लोगों की असेंबली भी होती है। सो अनीता वॉच देम क्वाइटली फ्रॉम बिहाइंड द रेड स्टोन वॉल टेकिंग वन लास्ट लुक एट हर गॉड्स एंड अनदर एट द चिल्ड्रन शी मेड हर डिसीजन। सो अनीता उन्हें चुपचाप रेड वॉल के पीछे से देखती रही और एक नज़र उसकी अपनी गॉड्स पे थी और एक नज़र बच्चों पे थी। फिर उसने डिसाइड किया। विद इन सेकेंड्स अनीता जॉइन द चिल्ड्रंस असेंबली और बिल्कुल पलक झपकते ही सेकंड्स के अंदर वो बच्चों के सामने में पहुंच गई। फॉरगेटिंग अबाउट व्हाट मिसचीफ हर गॉड्स वुड मेक इन अदर पीपल्स फील्ड। और वो ये भी भूल गई कि अभी वो ऐसे गोड्स को छोड़ के जा रही है वहाँ पे तो किस तरह की शरारतें वो करेंगे, एनिमल्स जैसे करते हैं फील्ड्स में। She spent the day at school without any of the teachers noticing that there was an extra student in the class। और उसने सरप्राइजिंग बात यह है कि उसने पूरा डे क्लास में अटेंड कर लिया, किसी टीचर को पता नहीं चला कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट वहाँ पे है। सो अनीता वॉज सो हैप्पी शी कुड बेयरली स्टॉप स्माइलिंग। अनीता बहुत खुश थी, वो हंसी रोक नहीं पा रही थी अपनी। व्हेन अनीता's पेरेंट्स फाउंड आउट अबाउट हर स्कूल डे दे वर वेरी एंग्री। जब अनीता के मम्मी पापा को ये पता चला कि वो इस तरह से स्कूल में उसने डे स्पेंड किया, बहुत ही गुस्सा हुए। हु विल लुक आफ्टर द गॉड्स हर फादर आस्क्ड। पापा ने पूछा ये गोड्स की देखभाल कौन करेगा। हु विल हेल्प मी विद द हाउस वर्क हर मदर क्राइड। मम्मी चिल्लाने लगी मेरी घर के काम में हेल्प कौन करेगा। गर्ल्स आर नॉट सपोज टू गो टू स्कूल द वीमेन इन द विलेज विस्पर्ड। जो गाँव की औरतें बात करने लगी आपस में धीरे धीरे। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ विस्परिंग दैट कि लड़कियों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, लड़कियों को स्कूल नहीं जाना होता है। ऑल्दो अनीता वॉज ओनली 7 years old शी न्यू शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। जस्ट लेट मी ट्राई शी सेड स्टबर्नली एंड ट्विस्टिंग हर हैंड्स टुगेदर टू मेक अ विश। हालांकि अनीता जो थी 7 years की थी लेकिन उसे पता था वो स्कूल जाना चाहती है। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की अपने मम्मी पापा से, प्लीज़ मुझे एक बार ट्राई करने दो। अनीता's father frowned and shook his head, but while his face said no, his voice said only until grade 5. After that you will have to work again. So अनीता के पापा ने जो है फ्राउन किया। फ्राउन मीन्स त्योरी चढ़ाना, जब रिंकल्स आ जाती हैं फॉरहेड पे, जब गुस्सा होते हैं एकदम। सो और पापा के फेस से तो ऐसा लग रहा था वो नो कहने वाले, लेकिन पापा ने कह दिया जैसे तैसे कि ठीक है ग्रेड 5 तक, उसके बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा। अनीता स्माइल्ड एट हर फादर विद अ लार्ज नोइंग ग्रिन बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू जस्ट कंप्लीट ग्रेड 5, शी वांटेड टू गो टू कॉलेज। शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड फाइंड अ वे। ताकि फेस पे स्माइल आ गई क्योंकि वो सिर्फ ग्रेड 5 तक नहीं पढ़ाई करना चाहती थी, कॉलेज जाना चाहती थी और उसने ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालेगी।
So Anita listened to her mind and her heart. When she thought about it, she found a way. अनीता ने अपने दिल की बात सुनी, अपने दिमाग की बात सुनी, और जो उसने सोचा उसे रास्ता मिल गया. अनीता started teaching other children what she learned in school and earning money for it. अनीता ने अपनी स्ट्रीट के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पैसे कमाने लगी, लाइक ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं इस टाइप से. दिस वे हर फादर नेवर हैड टू वरी अबाउट पेइंग हर स्कूल फीस. और पापा को कोई परेशानी नहीं थी कि उसकी स्कूल फीस कैसे देंगे. अनीता न्यू दैट बाय टीचिंग अदर चिल्ड्रन शी हरसेल्फ कुड कंटिन्यू टू लर्न. अनीता को ये पता था कि अगर वो इस तरह से खुद पैसे अर्न करेगी तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती है. सो शी डिड नॉट हैव टू ड्रॉप आउट टू स्कूल टू वर्क. शी वॉज एबल टू डू बोथ एट द सेम टाइम. तो उसे पढ़ाई के लिए जो है, काम के लिए स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी. However, not everyone in the village was very happy about the Anita teaching the village children. The older tutors, who were old men, blamed Anita for taking away their jobs. The village children preferred to learn from Anita because she explained ideas simply and understood easily what they found difficult. Even though the other tutors were not happy about Anita's teaching talent, they grumpily agreed that Anita did understand children better than they did, perhaps because she was only 15 years old. सो हर कोई जो है खुश नहीं था. अनीता जब बच्चों को पढ़ाने लगी थी, और जो ओल्डर ट्यूटर्स थे, जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे, अनीता तो अभी एक छोटी बच्ची ही थी, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था इस चीज़ पे. ब्लेम करते थे कि अब जैसे कि कोई दूसरा बंदा अगर पढ़ाने लग जाता है तो ट्यूशन के बच्चे वहाँ से कम हो जाएंगे. तो अनीता के पास ज़्यादा बच्चे आने लगे थे, एक्सपीरियंस टीचर के पास बच्चे कम हो गए थे. तो वो अनीता को ब्लेम करते थे कि अनीता की वजह से हमारी अर्निंग कम हो गई है, हमारे बच्चे जो हैं ट्यूशन के कम हो गए हैं. और हालांकि वो बड़ी ही उससे ये ग्रम्पीली अग्री कर पाते थे कि अनीता जो है बच्चों को अच्छे से समझ पाती है. सो टीचिंग अदर चिल्ड्रन हेल्प्ड अनीता फिनिश स्कूल, बट शी वांटेड टू स्टडी फर्दर. शी वांटेड टू गो टू कॉलेज. शी न्यू शी हैड टू फाइंड अ वे to work and stay in college at the same time. Anita did not have to look very far, just like always she found a way. सो जब वो बच्चों को पढ़ाने लगी, उसे एक रास्ता मिल गया कि वो अपनी फ़ीस वगैरह वहाँ पे दे सके. और लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती थी, वो कॉलेज जाना चाहती थी. उसे पता था कि उसे काम करने का, कॉलेज में रहने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना है. दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी क्योंकि उसे फ़ी भी खुद ही पे करनी है. सो अनीता को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमेशा की तरह उसे एक रास्ता मिल ही गया. So who is the story about? Where does she come from? What kind of person is she? And what have we learned so far in the story? So the story is about a girl named Anita who belongs to a village in Bihar. She is a dreamer and works towards making her dreams come true. The story so far describes her journey of fulfilling her dream to go to school. So story एक लड़की के बारे में है, अनीता, जो एक बिहार के एक गांव से बिलोंग करती है, एक ड्रीमर है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है. और अभी तक ये स्टोरी में बताया गया है कि स्कूल जाने के लिए कैसे वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगी हुई है. So were your predictions correct? What helped you to make predictions about the story, and how is the story different from the other stories we have read so far? So we made our predictions about the story using the photographs, captions or descriptions written below the photographs, and सब हैडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस बिलो द फोटोग्राफ. जब भी आप व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो लगाते हो, फेसबुक पे कोई फ़ोटो अपलोड करते हो, सो क्या होता है उसके नीचे कैप्शन लिखते हो, लाइक एन्जॉइंग इन शिमला. तो इस तरह से अनीता की फ़ोटोग्राफ्स के नीचे भी कैप्शंस यहाँ पे मेंशन है. सो सिंस द फोटोग्राफ्स आर ऑफ रियल पीपल, वी प्रेडिक्टेड दैट द स्टोरी वाज अबाउट अ रियल पर्सनस लाइफ, एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स इज़ नोन एज अ बायोग्राफी. सो किसी भी पर्सन की लाइफ स्टोरी जो किसी और के द्वारा लिखी गई है, किसी और पर्सन ने लिखी है, वो बायोग्राफी होती है. अनलाइक फिक्शन स्टोरीज, अ बायोग्राफी डिस्क्राइब्स रियल लाइफ इवेंट्स that may have real photographs with captions. So what will happen next in the story and what makes you say that? अब स्टोरी में आगे क्या होगा, अभी हमने कंप्लीट स्टोरी रीड नहीं की है. सो द स्टोरी विल डिस्क्राइब what Anita did to go to college and continue her studies. तो स्टोरी में शायद आगे ये हो सकता है कि वो कॉलेज, जैसे बार बार बताया जा रहा है, वो कॉलेज जाना चाहती है, तो किस तरीके से उसने आगे जो है मेहनत की और काम किया अपने कॉलेज को पूरा करने के लिए. इट विल ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ शी बिकेम अ बी कीपर. वी गेट टू नो दिस फ्रॉम सब हेडिंग्स. अनीता बिकम्स अ बी कीपर एंड द फोटोग्राफ ऑफ अनीता विद द बीज. और इसमें ये भी शायद हो सकता है कि वो कैसे बी कीपर बनी, क्योंकि इसकी भी फ़ोटो दी हुई है, वहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है. So now let's see question 1, third column, that is that were the predictions were correct or wrong. Who is the story about Anita? Our prediction was right. Story takes place in village, it was right. Story be about how Anita completes her dreams, it is right. Real story, it is right. And she is teaching the state children, it is right. So
What will Anita do to be able to attend college, and how do you know give reasons? So Anita will use bees to do something by which she can earn money. We think that she will become beekeeper. The photographs, titles and subheadings tell us that she does something with bees.